सो रहा है सर हाँ अभी क्या? से। ठीक है, जाने दो। स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके। ओके चलो, तो हम लोग आज नोड विल स्टार्ट विद द नोड जेएस. ओके, so let's understand first how we can install the Node.js. So this is the official website nodejs.org. Okay, and yeah, when once you went here, you have an option for download for Windows because we have a Windows option. Else you can go on the downloads and you can check it according to the system uh, which is your OS, and according to the OS you can download it. So this is the LTS version and this is the current latest feature. So always go with the LTS. So just start with the downloads. I already had an installation. I already installed the Node.js. So see, it is there. So again, I am going to show you how to install it. Okay. So once it is done, once you can start for the installation. So please wait while setup is out. Okay. So next, 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 install. Finish. Okay. Once you can go and you can check on your program files, there is a node.js, all whatever the version which you have installed, maybe it's all available on that side, or maybe it will get upgraded. तो upgrade हो जाएगा. आप कैसे चेक करोगे? आप node.js इंस्टॉल है आपके प्रोग्राम फाइल्स में, जाके चेक करो नोड है कि नहीं. So it's just check a node, sorry, node. तो ठीक है, node.js, in node.js का command prompt uninstall node.js, there are lots of things are there. आप इसको, मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ. ठीक है, आई हैव अ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर. यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन है. वी हैव अ टर्मिनल ऑप्शन. यू कैन ओपन द टर्मिनल. यू कैन चेक इट हियर. जब हम लोग कोई ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे देखो आप, पावर शेल, गिट बैश, कमांड फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, डिबग टर्मिनल, स्प्लिट टर्मिनल. जस्ट ओपन द पावर शेल एंड यू कैन चेक द योर नोड वर्जन, नोड हाइफन. ठीक है, सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माय Node.js वर्जन 18.17.0. ठीक है, यहाँ तक एनी क्वेश्चन, क्वेरी? सुमी? नो सर। Okay. Once you install the Node.js, npm also install automatically. So if I want to check npm version, npm-v, so you can check it here, 8.13.2 version. So now why we required npm? What is an npm? npm is nothing but the node package manager. ठीक है, अब यहाँ पे देखो npm, this is the official site of the npm. So I'm just pinging here on the chat box. Okay, and this is the official node.js website. Just pinging that website also, so just you can follow the things. ठीक है, चलो. Okay, so npm, once you install the node.js, automatically npm will be installed, so no need to separate installation for the npm. Why we required npm? Because we are going to using some npm packages in your node application. ठीक है, backend side. तो यहाँ तक क्लियर है? npm node, how to check the version. You can have the node.js command prompt. You can use the node.js command prompt if you want to perform anything, any operation. You want to just taste it. You can go inside the node. Okay, just you just have to enter the node and you can go inside the node.js. So once you enter it, you will go inside the node.js. Now you can check the basic operation also. See,
If you are adding again another plus, you will get the update according to that. You got it? This command prompt? Hmm? Yes, sir. Okay. Chalo. So this is a npm website, Node.js package, Node package manager website. Any packages which I want to install in my Node application, I have to go here. Suppose I have to install the Express. Okay. Now I have to just check it, the Express, search it. You have this installation package code. Okay, you have the basic understanding about your what are the things which are required, and then according to you can add it basically. So this is the installation command, this is the basic code. Okay, so for the Express we have to import it, we have to initialize the Express app, then we have to create a route, and then we have to listen the application on the particular port basically. So ऐसे बहुत सारे packages है will used in our application, backend application. यहाँ तक clear है? Then for API testing and all, we require the Postman. ठीक है? Same similar kind of thing. You can just go on the Google, you can just search it, the Postman, and you can install it. Okay, Postman download, you can download it and install it basically. ठीक है? Which are the tool required? Understanding was clear to work on the Node.js backend. Hmm? Yes, sir. ठीक है, this is a Postman tool. ठीक है, once you install it, you will have this kind of GUI basically. Then you can add here the API request, you can send it, you will get the result basically. तो यहाँ पे आप कोई भी dummy API देखोगे, a dummy API for testing, you will have lots of JSON placeholder है, ठीक है. You will have the URL basically, you can just copy this URL. I want the to-do list which have a one ID, and that is a get record. ठीक है, just send it, you will get the response here. See, you got the JSON response in the JSON format. User ID 1 title is completed. You will get the status, time, size, all the details will get here basically on this. So through this Postman we are going to test all those API which we have written in the backend side. Clear है यहाँ तक? Any question? hmm? नो सर, सर ये मतलब पोस्टमैन क्या है? मतलब Postman for अगर the मैं API वो, testing. देखो मैं समझाता हूँ हाँ आपको. एपीआई, हाँ, एक मिनट रुको. लेट मी कंप्लीट, देन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. देखो, एक होती है फ्रंट एंड की टीम, एक होती है बैक एंड की टीम. ठीक है, कोई भी यस ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ फ्रंट एंड टीम, बैक एंड टीम. सर, गुड फ्रंट एंड टीम एंड फाइन। बैक एंड टीम. गुड मॉर्निंग अभिषेक. हो गई नींद पूरी? ठीक है, एक होती फ्रंट एंड टीम, एक होती है बैक एंड टीम. फ्रंट एंड अभी टीम, खुली है बस। गुड गुड. फ्रंट एंड टीम, दे कैन, उनके डिजाइन्स पे काम चल रहा है, दे आर वर्किंग ऑन देयर पार्ट बेसिकली. सो दे आर वर्किंग ऑन देयर पार्ट, डिजाइनिंग का पार्ट चल रहा है उनके, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और डिजाइन्स बेसिकली और टेम्पलेट्स कंप्लीट नहीं हुए, दे आर वर्किंग ऑन दैट. सब तब तक ये बैकएंड वाले क्या बैठे रहेंगे क्या? दे विल सिट आइडल? नो सेंस, नो. दे हैज टू रिटर्न some API. ठीक है, अब API लिखने के बाद where do we then test? ठीक है, because front end is not ready. तो फ्रंट एंड रेडी होने के बाद फ्रंट एंड टीम will ask, you can give me this API, you can give me that API, and then they will integrate and they will test, and you both guys can test it. So now once backend team has written the API, now how they like why they will has to wait till the front end team has to complete the template. So instead of that, they can install the Postman tool, and they can start to whatever the API which they have written, they can start to test those API basically. Okay, and then also they will also get to know on which scenario they are getting error, if there any upgradation required on those API basically. So according to that, they can ready with that work. And see, once you have written, once you decided to write one API, no, so always there is a
there will be one format for the response and request. Okay, so maybe on particular documentation they've already definitely they already has a return, this is a request and this is a response. Or sometimes some API doesn't require any request, only you will get the response. Now you have to write this API according to that. You have to like you have to test it that API response will get on the same format which exactly mentioned on the documentation. Clear? Why we required a postman tool? Yes, sir. अभी क्लियर हुआ क्यों चाहिए? Yes. हम बैकएंड टीम आइडल नहीं बैठेगी जब तक फ्रंट एंड टीम के सारे टेम्पलेट कंप्लीट हो। इट्स टाइम वेस्टिंग टास्क। आप आपका करते रहो, हम हमारी बैकएंड के एपीआई लिखते रहेंगे, पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करते रहेंगे, और जैसा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में उस पर्टिकुलर एपीआई का फॉर्मेट है, तब तक तो मैं उसमें काम करते रहूंगा। वंस आई विल गेट द सेम फॉर्मेट देन आई विल स्टॉप द एपीआई on to work on that particular API, and then I will start to work with the next API। ठीक है, मैं नेक्स्ट एपीआई में काम करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वैसे फॉर्मेट आ गया है, मेरा मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट एंड टीम को जब जरूरत होगी मैं उस एपीआई का यूआरएल दे दूंगा। व्हाट इज एन एपीआई यूआरएल? दिस इज योर एपीआई यूआरएल। ठीक है, नाउ फ्रंट एंड टीम भाई, मुझे ये वाला टेम्पलेट में ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन करना है, आई नीड दिस एपीआई, तो यू कैन गिव मी। नाउ यू हैव टू गो, यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू शेयर द एपीआई लिंक, दैट्स इट। बस आपको एपीआई लिंक देके वो उनका काम करेंगे इंटीग्रेशन का, देन अगेन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट वर्क। हाँ, in case they are facing any kind of challenges or maybe the format is not correct, so they will inform you, you can correct it, or again you can send the updated URL। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? hmm? Yes, sir. any question, any issue till now? No. Okay, लोग वेट नहीं करेंगे और एपीआई मैंने बन ऑलरेडी कल ही बोला था कि आपको तो टीटीएस वाला रूल। हाँ दी हाँ टेम्पलेट। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अभिषेक, फर्स्ट थिंग। हेलो? अच्छा, हेलो? अब ऑडिबल है सर? हाँ अब ऑडिबल है। हेलो हेलो। हाँ बोलो। ओके अब सर, मैं कह टीटीएस रहा हूँ वाले रूल इस में मतलब एक एपीआई इज एक मिनट, नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्पलेट। नहीं, लिसन केयरफुली। अब टीटीएस वाले रूल में, टीटीएस टीटीएस जो हमारा डे डिसाइड हुआ है ना, उस दिन आप अलार्म लगा के सो जाओगे। ठीक है? यस सर, अलार्म भी लगा रखी थी सर, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। और लगाई नहीं थी। नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट कि यू कैन, यस योर मोबाइल इज कंप्लीटली चार्ज एंड यू कैन हैव एन अलार्म। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब क्योंकि मैंने सुमित को बोला आपको कॉल करने के लिए, बट यू डिडंट, उनका आपका कॉल नहीं लग रहा था, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया कि अब आप ज्वाइन हो गए या नहीं ज्वाइन हो गए पता नहीं है। Sir, फर्स्ट no थिंग, problem, sir. Sir, no problem. I think if I'm killing time, so I can join. I will watch the recording. No problem, sir. You continue. नो 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 No सुन, problem. नहीं नहीं नहीं, बट ध्यान रखना आगे से ये चीज़। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी कोई कोई चीज़ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, इससे अच्छा क्योंकि वी आर लर्निंग सम इम्पोर्टेंट पार्ट, नाउ वी हैव स्टार्टेड सम इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो बी केयरफुल विद दैट, जस्ट हमने टीटीएस इसके लिए रखा हुआ है कि कोई कंफ्यूजन ना Sir, हो। please, sir. I totally understand you. You continue the class, sir. I will watch the recording. नहीं, ओके। नाउ No व्हाट इज problem. योर क्वेश्चन? व्हाट इज योर क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट कि टेम्पलेट डिपेंडेंट नहीं होता है। नहीं, टेम्पलेट आपके सारे टेम्पलेट देखो, अब एक प्रोजेक्ट आता है, वंस द प्रोजेक्ट विल कम, द प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर विल डिसाइड एवरीथिंग इन स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑनली, बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑनली, कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये फंक्शनैलिटीज है, इसमें इतनी सारी एपीआईज लगेगी, एपीआई का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा और टेम्पलेट स्क्रीन के भी पूरे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। ठीक है, अब उस बेस पे वो लोग टेम्पलेट डिजाइन करते जाएंगे, उस बेस पे आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप एपीआई डिजाइन करते जाओगे। ठीक है, आप कम ज़्यादा हो सकता है, कोई फंक्शनैलिटी मैंने स्टार्ट की, उस फंक्शनैलिटी का मे बी डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ उस तरह से है, तो एक प्लस माइनस थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है, बट इट इज़ वेरी वेरी लेस ओनली, वेरी लेस चांसेस, वेरी लेस
पॉइंट्स कि आप कम ज़्यादा करोगे, ज़्यादा लेवल पे चेंजेस नहीं होंगे आपके टेम्पलेट में और आपके एपीआई। ठीक है। हाँ, मे बी कुछ डेटा दिखाते वक्त उनको ऐसे दिखाना वैसे होता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब लिखा हुआ होता है, ये गेट एपीआई है, इसका रिस्पॉन्स इस फॉर्मेट में आना चाहिए। नाउ आपको एपीआई ऐसे लिखनी है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्मेट लिखा हुआ है वो फॉर्मेट उस हिसाब से आपका आना चाहिए, तो आपकी कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है। क्योंकि कब जब भी एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बनता है तो वहाँ पे ऐसे लिखा गया हो, पूरा प्रॉपर लिखा जाएगा कि भाई देखो ऐसे लिखा जाता है, एक पोस्ट एपीआई है जिसमें से एक गेट एपीआईज है, फिर इसका रिक्वेस्ट क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, सब कुछ लिखा जाएगा वहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। वहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दे के रखेंगे कि भाई मुझे रिस्पॉन्स में इस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए, स्टेटस कौन सा आना चाहिए, 200 आना चाहिए, ओके आना चाहिए, सब कुछ लिखा जाएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। हेलो। 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 Yes, sir. Yes. अभिषेक। Yes, sir. Yes, अभिषेक, sir. क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? हेलो। Yes, sir. क्लियर हो गया ना आपका क्वेश्चन? कोई डाउट है अभी? हम्म। Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? नो? कैन आई मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट? No, no, sir. ओके। No, sir. Yes, sir. हाँ। ठीक है, तो एक मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन दिखाया था, तो यू कैन जस्ट फॉलो द रिकॉर्डिंग, आपको इंस्टॉलेशन अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या इंस्टॉल करना है। और आई जस्ट स्टार्टेड दिस बेसिकली, इनकी क्वेरीज मैं क्लियर कर रहा था, तो स्टार्टिंग में कुछ हुआ नहीं, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन द इंस्टॉलेशन, हाउ टू इंस्टॉल, कौन सी चीज़ हमें लगेगी। तो वी हैव रिक्वायर्ड अ नोड जेएस, वी रिक्वायर्ड एनपीएम। तो नोड इंस्टॉल करोगे तो एनपीएम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और वी रिक्वायर्ड अ पोस्टमैन। ठीक है। चलो, अब आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है। तो मैंने आज के डेट का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। अब मैं इसमें नोड जेएस को कैसे इनिशियलाइज करूँ? ठीक है। तो npm init कमांड से मैं नोड जेएस को इंस्टॉल इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है। अभी पूछ रहा है कि भाई आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, पैकेज का नाम क्या होगा। आई एम जस्ट रिटर्निंग हियर टेस्ट। ठीक है। वर्जन, मैं अभी कुछ ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक वर्जन नहीं है, तो आई एम जस्ट गिविंग द डिफॉल्ट। मैंने जस्ट एंटर कर दिया डिस्क्रिप्शन टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं, कीवर्ड मुझे कुछ डालना नहीं, ऑथर आप डाल सकते हो, हु हैज डेवलप्ड दिस, मैंने अभी सब ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और मैंने ओके कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट हो गई। जो भी आपने बेसिकली इंफॉर्मेशन दी थी कमांड प्रॉम्प्ट को विद द npm init कमांड, इसने आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना के दे दी, आपका नोड इनिशियलाइज करके दे दिया है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। Yes, sir. हम्म। सुमित, अभिषेक, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? देखो यहाँ पे नेम, वर्जन, इनकी No, सब sir. में वैल्यू होगी। नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन। मेन जो मेरी एंट्री पॉइंट फाइल होगी इस प्रोजेक्ट की, विच इज एन इंडेक्स डॉट जेएस, स्क्रिप्ट, ऑथर, लाइफ। ठीक है। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न इन हियर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ठीक है। मैंने एक फाइल क्रिएट की यहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इंडेक्स डॉट जेसन फाइल है। अब इफ आई वांट टू ऐड एनी एड ऑन पैकेज, तो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा उसको? जस्ट गोइंग, मैंने सर्च किया, मैं एनपीएम की वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि मुझे एड ऑन पैकेज कौन सा डालना है। आई वॉन्ट टू गो विद द एक्सप्रेस। मैं एक्सप्रेस में गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया कमांड को, यहाँ पे गया,
मैंने एंटर किया, देन यू कैन जस्ट हैव द सिंपल एंटर। ठीक है, अब देखो मेरा ये पैकेज ऐड हो गया। यू कैन चेक इट हियर, आपका नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट हो गया, पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल, जिसमें आपके सारे जो भी आप पैकेजेस ऐड करते जाओगे उनके वर्जन स्टोर होते जाएंगे जो इनिशियली आपने प्रोजेक्ट किया है उस टाइम के। ठीक है, this is the package.json file. One dependency which I've added express, and what is the version of that dependency? 4.18.2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कैसे कोई पैकेज ऐड किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए? क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रही है चीजें क्या बोल रहा हूँ? एनी क्वेश्चन Yes, डाउट? sir. No, sir. ओके, अब मैं सेम पैकेज को अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इंस्टॉल एक्सप्रेस, अब मैंने गलती से ऐड ऑन किया है, मुझे अनइंस्टॉल करना है। npm uninstall आपका पैकेज नहीं, वो पैकेज आपके पैकेज डॉट जेसन फाइल में से चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी पैकेज ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर Yes, में sir. से, Yeah. क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. एक तो आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल, और दूसरी चीज़ आप जो भी डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो दैट इज द थिंग बेसिकली। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे index.js फाइल बनाई है। ठीक है, अब index.js फाइल में क्या आएगा, एग्जैक्टली क्या लिखोगे आप index.js फाइल में? तो index.js फाइल में आपको क्या लिखना है? देखो, बैकएंड क्यों लगता है कोई भी एप्लीकेशन में? व्हाई वी रिक्वायर्ड अ बैकएंड? स्टोर करने के लिए ऑथराइजेशन ये सब। देखो, कोई भी वेब एप्लीकेशन में दो चीजें होती है, एक तो फ्रंट एंड और एक तो बैक एंड होता है। ठीक है, और जो भी डेटा होगा वो स्टोर कहाँ पे होगा? आपके डेटाबेस में। फ्रंट एंड, बैक एंड, और क्या? डीबी। ठीक है, फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा बैक एंड को कि मुझे इस टाइप का डेटा चाहिए। बैक एंड क्या करेगा? डेटा कहाँ पे स्टोर है? डेटाबेस में। डेटाबेस में उठा के लेके आएगा और रिटर्न करेगा फ्रंट एंड। तो ये हो गई मेरी रिक्वेस्ट, और ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके, ये हो गई मेरी रिक्वेस्ट, ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स जो रिटर्न आएगा और मैं फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करूंगा यूजर को बेसिकली। सो ये जो रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, ये बैकएंड को भेजिए। बैकएंड क्या करेगा? डीबी को कनेक्ट करने के लिए हमेशा वी रिक्वायर्ड अ बैकएंड। ठीक है, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ बैकएंड। तो बैकएंड में जो भी हम एपीआईज लिखेंगे, जो भी डेटा स्टोर करेंगे फ्रंट एंड से लेके, दैट एवरीथिंग विल बी स्टोर इन द डेटाबेस। ठीक है, users के detail, everything about the any dynamic web application. We are not creating here any static web application. We are creating a backend dynamic web application. तो dynamic web application में कभी भी डेटा जो होता है यूजर से कलेक्ट किया हुआ वो सारा डीबी में जाके स्टोर होता है, एंड देन फ्रंट एंड विल सेंड द रिक्वेस्ट, बैक एंड विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड गिविंग यू द रिस्पॉन्स इन द रिटर्न फॉर्मेट। अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ HTTP। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली। तो ये जो रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाता है विद द हेल्प ऑफ HTTP URL। अब यहाँ पे भी देखो मैंने डाला है, यहाँ पे भी एक HTTP URL है। ठीक है, HTTP URL, जब भी मुझे कुछ पर्टिकुलर
थर्ड पार्टी सर्वर से कनेक्ट करना है, definitely we require HTTP. Without that, that is not possible. So we have to import HTTP module, create a server. तो वो आपका एक बैकएंड एप्लीकेशन है, उस सर्वर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट हो जाएगा. तो नाउ हाउ वी कैन क्रिएट अ सर्वर. तो दिस इज माय index.js. अभी तक ये सर्वर नहीं है, अभी तक जस्ट एक प्रोजेक्ट फोल्डर है. नाउ लेट मी कन्वर्ट दिस एंटायर प्रोजेक्ट फोल्डर इनटू दिस सर्वर. तो मैं यहाँ पे एक HTTP लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने. देन रिक्वायर क्या करता है, आपके जो भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल है उनको ऐड ऑन करने का, इंपोर्ट करने का काम करता है रिक्वायर. ठीक है, HTTP. सॉरी, यहाँ पे 3T हो गए गलती से. ठीक है, अब मुझे HTTP वाज अ कोर मॉड्यूल ऑफ Node.js. तो इसमें हमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है. मैंने डायरेक्टली वायर HTTP किया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड HTTP. ठीक है, अब इस वेरिएबल में रेफरेंस आ गया. ठीक है, मुझे सर्वर क्रिएट करना है, तो हम वी हैव अ मेथड क्रिएट सर्वर. ठीक है, जिसमें मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास करता हूँ जो कि मुझे रिक्वेस्ट भेजने के लिए काम आएगा. एंड देन आई हैव टू रिसीव द रिस्पॉन्स. ठीक है, अब मुझे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के टाइम पे. ठीक है, तो आई एम जस्ट सेंडिंग res whatever the response which I have to send the page, right head. ठीक है, मुझे लिखना है, पहले तो मुझे रिस्पॉन्स कोड पास करना है 200. ठीक है, विच इज स्टेटस ओके वाला. ठीक है, जिसमें मेरा कंटेंट टाइप होगा सी. अब मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन. आई जस्ट इंपोर्टेड फर्स्ट, यहाँ पे मैंने HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्टेड. ओके, ठीक है. नाउ यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल, थ्रू द HTTP मॉड्यूल, I just created a server in my local machine. Okay, because we are working on the local machine. ठीक है, it's have a 2 parameter request which you want to send request to the server, and the response which you will receive the response from the server basically. ठीक है, अब here I am not sending any request, I'm just taking the response from the server. So now what I want to display here, response right head, it is a built-in function method for this HTTP server which I am just sending 200 code. And what kind of content which I have, normal text plain, you can change it with the text, JSON, HTML and plain text. Now I have a plain text, so that's the reason I have just mentioned here text plain. Okay, this is the normal text which I want to display on the screen. Now what is the response exactly which I want to send, hello world. I have here which I have written res.end, मैंने यहाँ पे लिखा response.end. क्या करना है मुझे, एंड hello world लिख के छोड़ देना. ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सो एक वर्ड रेस्पॉन्स कोड की जगह आपको अगर दूसरा रेस्पॉन्स कोड लिखे तो क्या गलत हो जाएगा? मैंने बोला ना यहाँ पे, जो आपको आप 3 टाइप के रिस्पॉन्स भेज सकते हो. सॉरी,
यहाँ पे मुझे प्लेन टेक्स्ट भेजना था, तो मैंने प्लेन लिखा है, टेक्स्ट प्लेन। ओके, यहाँ पे आप HTML भी लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी पूरा पूरा का पूरा HTML भी मुझे दिखाना है या पूरा जेसन फॉर्मेट में दिखाना है, तो यू वी कैन चेंज इट दैट। ओके, ठीक है। वैसे हम लोग HTTP मॉड्यूल का यूज नहीं करेंगे, विल डेफिनेटली यूज दी एक्सप्रेस, जो थोड़ा सा और बेटर वर्जन ऑफ योर HTTP मॉड्यूल। नाउ बट जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ सर्वर इन माय लोकल मशीन विद द हेल्प ऑफ HTTP मॉड्यूल। सर नहीं, वो रेस्पॉन्स कोड जो है 200, सो 200 की जगह अगर हम लोग दूसरा 200 300 है, हाँ 300 और हाँ 300 तो हाँ पोस्ट होता है, हाँ, तो देखो ये क्या यहाँ पे, डिपेंड करता है क्या हाँ 200 इस? ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड होता है। कोई भी आप गूगल पे जाके सर्च करो, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे देखो, हमने कुछ, अभी तो मैंने एरर हैंडलिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, कि यहाँ पे सिंपल मैंने एक जस्ट 200 का स्टेटस कोड भेजा हुआ है और मुझे हेलो वर्ल्ड दिखाना है। तो आप जब एरर हैंडलिंग वगैरह सब कुछ करोगे ना, तो आपको ऐसे लिख के रखना है, आपकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐसी रहेगी कि भाई कौन से सिनारियो पे कौन सा स्टेटस कोड जाना चाहिए, जो सामने वाले बंदे को समझ में आएगा, जो फ्रंट एंड वाले को समझ में आएगा कि भाई ए वाला स्टेटस कोड आएगा तो मुझे आउटपुट में ए चीज दिखानी है यूआई पे। ठीक है, तो वी हैव अ लॉट्स ऑफ स्टेटस कोड। वन एक्सेस के इंफॉर्मेशनल होता है, सक्सेस होता है, देन रीडायरेक्शन होता है, क्लाइंट एरर होता है। ठीक है, तो आप जो भी सर्वर एरर होता है, तो किस चीज में कौन सा एरर होगा, आप स्टेटस कोड भेजोगे, एरर भेजोगे, उस हिसाब से फ्रंट एंड वाली टीम कंडीशन बेसिस पे आपके स्टेटस कोड को दिखाएगी वहां पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी तो हम भी करेंगे, सब कुछ लिखेंगे आगे जाके एपीआई में, कैसे स्टेटस कोड लिखा जाता है, कैसे एरर हैंडलिंग होती है, सब कुछ। बट जस्ट आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक आपको? Yes, sir. पक्का? नहीं तो सर ने चिल्ला दिया तो अब क्वेरी नहीं पूछ रहे हो। नहीं सर, नहीं। क्लियर मेरे है को ना? तो ये समझ में नहीं आ रहा, HTTP जो है, हम्म HTTP जो आपने वेरिएबल बनाया है, हम्म हम्म। हाउ दैट इज रिलेटेड टू आवर वेबसाइट, वो कनेक्शन कहाँ पे है कि दैट HTTP बिलोंग टू द वेबसाइट वी क्रिएटेड? नहीं, अभी तो हम सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। अभी ये मेरे लोकल मशीन पे सर्वर है, ठीक, मैंने कहाँ पे कुछ होस्ट नहीं किया है, कहीं पे कुछ नहीं। हमारा जो नेटवर्क होता है ना, इंटरनेट होता है, वो HTTP पे, HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल पे काम करता है। अभी तो लोकल मशीन में आप कोई भी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट HTTP आ जाएगा। ठीक है, अब मैं मेरी वेबसाइट भी ओपन करूँ यहाँ पे, तो देखो अभी कोई कुछ भी ओपन करूँ तो HTTP बाय डिफॉल्ट आ गया। तो अभी मेरे लोकल मशीन पे कोई HTTP नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, पहले तो मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा। तो HTTP मॉड्यूल के बेस पे मैंने एक सर्वर बनाया, क्रिएट सर्वर के मेथड से, जो ऐसा काम करेगा, सर्वर का काम करेगा लोकल मशीन पे। अब आपकी फाइनल वेबसाइट बनने के बाद आप कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर पे होस्ट करोगे आपकी वेबसाइट, बराबर है? हम्म, बराबर है ना? हेलो। हम्म। हम्म, कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर पे आप यस, होस्ट यस। करोगे तो डेफिनेटली HTTP पिक्चर में आ जाएगा। बट मुझे लोकल मशीन पे सर्वर बनाने के लिए मेरे पास दो टाइप के मॉड्यूल है, HTTP और एक्सप्रेस। दोनों सर्वर बनाने का काम करते हैं। HTTP कोर मॉड्यूल है, एक्सप्रेस एक npm पैकेज है। तो मैंने इसको बोला कि भाई, इसको पहले मैंने इंपोर्ट किया, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उस रेफरेंस वेरिएबल से मैंने क्रिएट सर्वर की मेथड यूज करके एक सर्वर बनाया। और इस फंक्शन को मैंने दो पैरामीटर पास किए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि कोई भी HTTP मॉड्यूल आपका दो पैरामीटर एक्सेस करेगा, रिक्वेस्ट इधर रिस्पॉन्स। सर्वर में रिस्पॉन्स क्या आएगा, सर्वर में रिक्वेस्ट क्या जाएगी, बराबर है? कोई भी पेलोड होता है ना, पेलोड सर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देता है आपको, बराबर है? अब ये मेरा पेलोड है, बराबर। इस पेलोड पे गेट रिक्वेस्ट है, इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, सिर्फ रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, देखो HTTP, इन्होंने दो एरो हम्म लिखा है, एक जाएगा और एक आएगा रिटर्न में। जाएगा मतलब रिक्वेस्ट, आएगा मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आई होप सो कि मुझे आपका इतना भी क्वेश्चन समझ में, ओके। अब HTTP
कैसे रिलेट करेगा आपकी वेबसाइट को, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा नहीं था, बट मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आई होप कि मैंने आपको आंसर दिया है क्वेश्चन। तो सर अभी जो हमने ये क्रिएट सर्वर और रिस्पॉन्स बनाया है, तो अगर मैं कोई सा भी एचटीटीपी साइट अगर अब हम्म। में यही जाएगा, सब में अगर सब में रिस्पॉन्स वाला हेलो वर्ल्ड ही जाएगा नहीं अभी ना? नहीं नहीं, कंटेंट तो चेंज होगा ना, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई मेरा सर्वर प्रॉपर इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं, और मेरा सर्वर अब तो आगे कोड लिखना है, और यहाँ पे तो आपके सारे एपीआईज रहेंगे ना, इसको अच्छा और अच्छा। बेटर वे से आप लिखोगे। अभी तो आपने सिर्फ टेस्ट करने के लिए इतना लिखा है कि भाई मुझे चेक करना है कि हेलो वर्ल्ड मेरे पर्टिकुलर सर्वर पे वो रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है। ठीक है। ओके ओके अब ओके। बाद में तो कंटेंट चेंज होगा ना, सारे एपीआई में थोड़ी हेलो वर्ल्ड लिख के देंगे, बराबर है ना, सारे एपीआई में तो यस हेलो वर्ल्ड यस। नहीं आएगा। हम्म। हम्म। अब मेरा सर्वर रेडी है, अब सर्वर को रन करने के लिए कोई तो पोर्ट नंबर चाहिए, विदाउट पोर्ट सर्वर विल नॉट रन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ, लिसन कर देता हूँ कौन से पोर्ट नंबर पे मुझे रन करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न गिव एनी नॉर्मल पोर्ट। आप चेक करो पोर्ट कोई, आपने वो पोर्ट कहीं पे ऑलरेडी यूज किया है या नहीं, नहीं किया है, यू कैन जस्ट रिटर्न 8080 पोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ हाउ आई कैन रन दिस सर्वर, इस फाइल को रन करना पड़ेगा ना, तब मेरा सर्वर स्टार्ट होगा। आई जस्ट गोइंग टू रन इट नोड index.js। ठीक है, अलाउ एक्सेस कर दिया मैंने इसको। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो कोई कंसोल डॉट लॉग किया है नहीं, कोई कंडीशन है नहीं, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैंने लोकल हॉस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 8080 करता हूँ, एंड देन चेक आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? हम्म। यहाँ तक क्लियर है? यस अभिषेक, यस पक्का? यस सर यस सर यस सर। यस सर। चलो, दैट इज द वन थिंग। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है, कैसे तो कोई प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है, कैसे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप Node.js के इसमें इनिशियलाइज करोगे विद हेल्प ऑफ package.json फाइल। जैसे npm init कमांड करोगे package.json फाइल। कोई भी Node.js का प्रोजेक्ट बैकएंड विदाउट package.json फाइल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, जिसमें आपका नोड मॉड्यूल का फोल्डर होगा जो आपके सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन को स्टोर करेगा। ठीक है, ये फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होके सर्वर पे जाएगा तब नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं जाता है। ठीक है, चलो इतना एक्सप्लेन करके, हाँ, अब मैंने इसको रन कर दिया, इसको मुझे स्टॉप करना है, जस्ट प्रेस कंट्रोल सी, आपका सर्वर वापस स्टार्ट हो गया। आप इसको रन करोगे देन अगेन यू विल गेट द एरर। ठीक है, ये आपका गया, द साइट कांट बी रीच, रिफ्यूज द कनेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्वर को स्टॉप कर दिया है, माई सर्वर नाउ, माई सर्वर विल नॉट। ठीक है, अभी इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने नोड लिख दिया, node index.js फाइल, then npm start, इससे भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, आई होप सो। नहीं तो मुझे मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, मिसिंग अ स्क्रिप्ट, नो इंडेक्स, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको एक लिखना पड़ेगा स्टार्ट, एंड देन यू कैन ऐड नोड, होता है नोड, आई होप सो, npm start।
इसको मैं देखता हूँ बाद में, शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, बट यहाँ पे ठीक है। अब मुझे कैसा करना है, अब ये मेरी index.js फाइल है, समथिंग विच आई हैव अपडेटेड हेलो वर्ल्ड वेलकम मैंने यहाँ पे लिखा। अब पहली बार मैंने यहाँ पे नोड index.js किया, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, फाइल रन हो गई, ठीक है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, फाइल रन हो गई, लोकल होस्ट पे आउटपुट हो गया। अब इफ आई एम गोइंग टू चेंज एनीथिंग अगेन ऑन दैट फाइल, तो मुझे इसको ये ऐसे ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं लेगा, आई हैव टू अगेन स्टॉप इट, अगेन आई हैव टू रन दिस फाइल एंड अगेन आई हैव टू गो एंड अगेन आई हैव टू चेक द आउटपुट, ठीक है। तब जाके ये मुझे दिखने लगा है। अब वी हैड पैकेज nodemon, ठीक है, जो आपका जो भी फाइल आप अपडेटेड करोगे बार बार, ऑटोमेटिकली इट विल टेक अपडेट एंड इट विल रन ऑन योर पर्टिकुलर सर्वर। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, फर्स्ट पैकेज मैं बता रहा हूँ, npm पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखो, आई एम जस्ट ओपनिंग हियर अगेन वन मोर पावरशेल, इसको मैंने इंस्टॉल किया, npm i nodemon, इसकी सारी डिपेंडेंसी मेरे लोकल फोल्डर में, लोकल सर्वर के फोल्डर में इंस्टॉल हो गई। देन आई कैन गो एंड आई कैन चेक nodemon हैज इंस्टॉल एज एन डिपेंडेंसी, ठीक है। अब इस डिपेंडेंसी को कैसे यूज करूंगा मैं, ठीक है। यू कैन गो हियर, यू कैन चेक द डॉक्यूमेंटेशन, आपने क्या क्या इंस्टॉल किया, हाउ यू कैन यूज इट, ठीक है। वी हैव रिटर्न एवरीथिंग हियर, आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे, बट चल, नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड द डिपेंडेंसी, चलो, nodemon index.js, सर एप्लीकेशन नेम। क्या हो गया, सर उधर में लिखा है नोडेमोन फिर एप्लीकेशन नेम। nodemon, इसको कैसे यूज करते हैं, nodemon, there are lots of packages, सर वो फोल्डर नेम होगा शायद मुझे। नहीं नहीं वैसे नहीं होता है, जस्ट वन सेकेंड, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करना है मुझे। nodemon को इंस्टॉल किया ग्लोबली एंड आउटपुट server dot js, we are there on that, करेक्ट तो है भाई। तो ये एक्सप्रेस में ही काम करेगा, HTTP पे नहीं काम करेगा, ऐसा है क्या। न्यू फाइल server server.js, there is my npm express,
सर स्क्रिप्ट के अंदर हाँ, not recognize by dependency added full stack builder. Node server dev started. ठीक है, ये तो वाला हो गया अभी। उठे 3000। ओके, ठीक है। ओके, देखो ये आपकी जैसे जैसे फाइल अपडेट हो जाएगी वैसे वैसे आपका रीस्टार्ट मारते जाएगा। तो क्या किया है मैंने यहाँ पे, एक स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट स्क्रिप्ट लिख दी नोडमन सर्वर डॉट जेएस, कौन सी मेन फाइल है जो हर बार रीस्टार्ट होगी, मेन सर्वर डॉट जेएस फाइल। और उसको मैंने यहाँ पे जस्ट npm स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी नोडमन सर्वर डॉट जेएस फाइल रन होगी। अब जैसे इसको आप अपडेट करोगे यहाँ पे, यू कैन सेव इट, ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक यू विल गेट द अपडेट। यहाँ पे पता चला नोडमन कैसे यूज होता है। सर एक बार दिखाना वो चीज। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो ऑन द package.json फाइल। आपकी मेन सर्वर फाइल कौन सी है, दैट सपोज आई हैव अ index डॉट आई हैव अ सर्वर डॉट जेएस फाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोडमन सर्वर डॉट जेएस फाइल लिख दिया। ठीक है, मुझे किससे स्टार्ट करना है, नोडमन के थ्रू स्टार्ट करना है, क्योंकि नोडमन का क्या काम है, हर बार अपडेट होने के बाद फाइल को रिस्टार्ट करना। अब इसको रन करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, npm स्टार्ट। npm स्टार्ट कमांड क्या करेगा, वो जाके स्टार्ट स्क्रिप्ट में देखेगा कि भाई स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है नोडमन सर्वर डॉट जेएस, ऑटोमेटिकली मेरा नोडमन स्टार्ट हो गया और जो भी आपका अपडेट रहेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ पे वापस अगर अपडेट कर निकालोगे इसको ना, देखो रिस्टार्टिंग नोड सर्वर डॉट जेएस, सर ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे अपडेट आ गया। ठीक है, सर अगर फाइल नेम क्या है, सर्वर डॉट जेएस ही होना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट जेएस में भी तो होगा। हाँ नहीं इंडेक्स डॉट जेएस में भी होगा बट आई थिंक इसके लिए एक्सप्रेस डॉट जेएस ही लगेगा, जो आपका एचटीटीपी मॉड्यूल का हायर वर्जन है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक होना चाहिए, लेट मी चेक विद द index.js also। इसका कोई लेना देना नहीं है शायद, आई एम नॉट श्योर। हम लोग वी आर वेरी हैबिचुअल विद द एक्सप्रेस ओनली, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस ही यूज करेंगे। नहीं, ये पोर्ट कौन सा है, 8000 है, तो लेट मी हैव 8080। सर स्टार्ट किया नहीं हुआ। हाँ, इसको स्टॉप करके टर्मिनेट विद द cls npm start। ओके, 8080 पोर्ट पे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों दोनों में चलेगा मतलब, हाँ, नोड में भी इंडेक्स और डॉट एक्सप्रेस में भी। नहीं नहीं, एचटीटीपी में और एक्सप्रेस में देर आर टू मॉड्यूल्स टू वर्क विद एन एचटीटीपी। ठीक है, हमने क्या किया है, दो टाइप के सर्वर बनाए, एक तो एचटीटीपी मॉड्यूल के थ्रू सर्वर बनाए और एक यहाँ पे जो एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर बनाए। अब इसमें और इसमें देखो, आप कंपेयर करोगे ना तो इसमें देखो आपने कितने लाइन का कोड लिखा हुआ है और इसमें देखो आपने कितने लाइन का कोड लिखा हुआ है, दैट इज द बेनिफिट। ठीक है, इसके लिए वी विल यूज द एक्सप्रेस जेएस। क्लियर है। हम्म यस सर। हम्म अभिषेक यहाँ तक क्लियर है, क्या क्या हुआ यहाँ तक। यस सर। पक्का, एनी क्वेश्चन क्वेरी यहाँ तक, डाउट। नो सर।
सुमित? No, sir. ठीक है, so we'll stop here. You guys can do the practice till now. If you have any query, we'll discuss on Thursday class. ठीक है, आप सर्वर बनाओगे, Yes, sir. एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर बनाओ, HTTP के थ्रू सर्वर बनाओ. यहाँ पे कोई इशू है आपको कोड समझने में तो आई कैन एक्सप्लेन. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द HTTP मॉड्यूल. यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया. यहाँ पे जैसे ही आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल करोगे, इंपोर्ट करोगे, आपको एक इनिशियलाइज बनाना इस एक्सप्रेस का सॉरी एक्सप्रेस HTTP मॉड्यूल का सर्वर का आपने एक वेरिएबल बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल. इस वेरिएबल के थ्रू आपने गेट मेथड को कॉल किया, जो भी आपका राउट है यहाँ पे स्पेसिफाई किया, फंक्शन एज अ सेकंड पैरामीटर पास किया जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करेगा. अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कुछ नहीं है तो res.send hello world, और मैंने इस एप्लीकेशन को लिसन कर दिया पोर्ट नंबर 3000 पे. सिंपल कोड. सर ये एक्सप्रेस कॉन्टेंट इक्वल टू एक्सप्रेस ये क्या फन है? एक्सप्रेस इज इक्वल टू कौन सा वाला, सेकेंड लाइन. सर ये कांस्टेंट है, सेकंड हाँ, सेकेंड लाइन लाइन पे क्या एक्सप्रेस जो ये किया, क्या फंक्शन है यहाँ ये? पे एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इंपोर्ट किया मॉड्यूल को. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूल को इनिशियलाइज किया. ठीक है, यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूल को एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया, और इस इनिशियलाइज का जो रेफरेंस है मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया. ठीक है, इसको मैंने एक नाम दिया ऐप. यूजुअली हमारा एप्लीकेशन होता है तो ऐप नाम दिया. और जो भी देखो, जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ ना, आप इस ऐप के ऊपर परफॉर्म करो. ये मेरा एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे लिसन होगा, ये मेरा एप्लीकेशन पे कितने, कौन सा वाला राउट है, ये गेट वाला राउट, ये एप्लीकेशन किस पे लिसन होगा, 3000 पोर्ट पे लिसन होगा. यस क्लियर हुआ. यहाँ पे यस इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इंपोर्ट, जो भी मॉड्यूल लगेगे आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, बाद में इनिशियलाइज करोगे, बाद में राउट लिखोगे, बाद में आपका फाइनल एप्लीकेशन लिसन करोगे पर्टिकुलर पोर्ट पे. ठीक है, यस सर. अभी कोई क्वेश्चन और, यहाँ पे नो कोई सर. क्वेश्चन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन. नो. अब मैं थर्सडे के क्लास में व्हाई वी हैव टू यूज द नोड जेएस, इसका बेनिफिट, अभी तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलेशन, कैसे नोड फोल्डर को सर्वर में कन्वर्ट कैसे करना है, पैकेज डॉट npm init कमांड से सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया. पैकेजेस इंस्टॉलेशन, पैकेजेस अन इंस्टॉलेशन, npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ पैकेजेस, फाइल कैसे क्रिएट होता है, फाइल को रन कैसे किया जाता है, देन अगेन बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कैसे काम करना है, एवरीथिंग विच आई एक्सप्लेन इन दिस सेशन. अब थर्सडे की क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई वी रिक्वायर्ड अ नोड.js, क्या क्यों चाहिए हमें नोड.js, क्या बेनिफिट है, क्या सिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन ऑन द थर्सडे क्लास. ठीक है, ओके. हेलो. यस सर यस यस सर. सर. ठीक है, चलो. ये वाली स्टेटस कोड की वेबसाइट है आपके पास, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, यू हैव अ लॉट्स ऑफ स्टेटस कोड वेबसाइट, यू कैन सर्च इट. इसकी चीट शीट भी आती है. इनिशियली आप चीट शीट डाउनलोड करके रखो तो यू विल गेट टू नो विच पोस्ट फॉर विच पर्पस वी हैव टू यूज इट. ठीक है, पोस्टमैन एक्सप्लेन कर दिया, पोस्टमैन समझ में आ गया. ओके, देन विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे कैसे फोल्डर वगैरह बनाना है, कैसे पैकेजेस यूज करना है, टर्मिनल कैसे यूज करना है, आई हैव एक्सप्लेन हियर. ठीक है, ओके. सर, सर नोड और एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है सर? बड़ा क्वेश्चन है. हम्म, सही है, कोई है? सही है. नोड, ए नोड है. ठीक है, नोड क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट है. हम्म. जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, हम्म. एनवायरनमेंट है. ठीक है, आप ये जो बैकएंड में जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये क्या करेगा, एक आपको लोकल मशीन पे सर्वर बना बना के देने का काम करेगा. ठीक है, इस सर्वर को रन करने का काम करेगा. ये सर्वर बनेगा किससे, एक तो HTTP मॉड्यूल से, इधर एक तो एक्सप्रेस जेएस एक्सप्रेस सर्वर से.
हम्म अब पता चला क्या है अच्छा, ओके। नोड क्या है। नोड एक हम्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। हम्म जो भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करोगे, ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट की फाइल, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल हम्म कैसे रन करते हो? डॉट जेएस एक्सटेंशन वाली जो हमने क्लाइंट साइड पढ़ी सारी। आप वेब ब्राउजर पे जाते हो, डबल क्लिक करते हो, ओपन करते हो, हम्म क्रोम ब्राउजर में जाके, क्रोम या एनी ब्राउजर, यस। तो आपका आउटपुट दिखता है। हम्म ठीक है, इसका आउटपुट ऐसे ही नहीं दिखेगा। यस सर। ये रन टाइम हम्म एनवायरनमेंट क्या करता है, जो आपने एक्सप्रेस मॉड्यूल से सर्वर बनाया है, इसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, जो आपका ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग करता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, और क्लाइंट फिर आपको फाइनली जाके आपका आउटपुट दिखता है, जो मैंने लोकल होस्ट किया था, जो भी मेरा सर्वर का पोर्ट होगा उस हिसाब से। ठीक है, अब क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अच्छा, कोई सर्वर रन ओके। नहीं है, इसके लिए आई एम गेटिंग द एरर। यस सर। बट अब क्लियर है? नोड क्या है? नोड एक हाँ हाँ, बैकएंड है, क्लियर है सर। जावास्क्रिप्ट हम्म रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो आप भी जो भी आप एचटीटीपी और एक्सप्रेस से सर्वर बनाओगे, उसकी जो भी फाइल्स है उसको रन करने का काम करेगा। ओके सर। ठीक है, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? क्लियर है। नो। ओके, ठीक है, क्लियर है, ओके। आपने असाइनमेंट्स भेजे, ये आपके असाइनमेंट्स है, बराबर है ना अभिषेक? ओके, यस सर। तो आपने जिस दिन हम हमारी क्वेरी सेशन हुई थी इस असाइनमेंट के ऊपर, तो आपने जो एज इट इज है हम्म वही उठा के मुझे भेज दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे फुटर नहीं है, नहीं उस दिन नहीं भी नहीं। फुटर नहीं, नहीं नहीं, उस दिन भी फुटर नहीं तो था, देखो, आज भी फुटर नहीं है। इसमें एरर आ रहा था सर, इसमें चेंज कर दिया मैंने। ओके, मे बी, बट यहाँ पे फुटर नहीं है, उस दिन भी फुटर नहीं था, तो यहाँ पे भी नहीं है। फर्स्ट थिंग, अब ये तो टेम्पलेट आपने एज इट हाँ, इज उठा फुटर के, हाँ, इसमें ऐड नहीं किया। ये तो आपने टेम्पलेट एज इट इज हम्म उठा के डाले हुए मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऐसे की ऐसे ही है आउटपुट। उस दिन हमारा क्वेरी सेशन हुआ था, मैंने हम्म दिखाया था, वो यहाँ पे भी एज इट इज ही है। हम्म। ठीक है, हाँ तो सर, मतलब फिर मैंने हाँ तो हाँ तो ये नहीं, चेंज अब नहीं मैंने किया। पकड़ा हुआ है हम्म, आपको, तो दैट इज यू कैन रेक्टिफाई इट। ओके, चीजें आप रेक्टिफाई करो, हाँ, ठीक क्योंकि है। आपको जो क्वेरी आनी चाहिए हम्म थी, यहाँ पे आपको क्वेरी नहीं, आपने कैसे किया, आप थर्सडे के क्लास में मुझे और सुमित को दोनों को एक्सप्लेन करोगे, ये वाली चीज आपने कैसे की। ठीक है, ठीक है सर। आपने खुद से किया होगा तो मुझे पता चल ओके। जाएगा कि ये वाली चीज आपने, क्योंकि है ना, खुद से जब आप टेम्पलेट स्टार्ट करते हो कोई भी, तो ऐसा तो बनता ही नहीं कि आपने फेविकॉन आइकन तीनों जगह पे हम्म सेम यूज किया है। आई नो द डेवलपर अच्छा। हैबिट्स, इतना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सेम फेविकॉन आप तीन ही जगह पे यूज करोगे, आप भूल जाओगे, या कितने लोग, आप यहाँ पे देखो आपने फेविकॉन नहीं लगाया हुआ, क्योंकि आपने टेम्पलेट खुद से स्टार्ट किया हम्म था, बट यहाँ पे लगाया हम्म हुआ है और तीनों जगह पे सेम फेविकॉन है। ठीक है, तो मुझे ठीक चीजें है। देख के ही पता चल गई कि भाई कितनी खुद से की हुई है, कितने खुद से नहीं की हुई है। तो दैट, सी, माय एफर्ट ऑलवेज फील लाइक दैट कि आप खुद से करो चीजें, खुद से सीखोगे, समझ में आएगी। ठीक है, मैं, मेरा काम है पुश ऑन करना, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हम्म सुमित को ये टेम्पलेट करते टाइम बहुत सारी क्वेरीज थी, he had a lots of query he asked me in this template also। आप ये भी मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आपने कैसे किया है अबाउट वाला सेक्शन। ठीक है, ये ठीक है अबाउट सर। वाला सेक्शन आपने कैसे किया, यू ओके। यू विल एक्सप्लेन अस ऑन थर्सडे सेशन। ठीक है, हम्म हम्म। ओके। सुमित, आपका हो गया अबाउट सेक्शन, सर पेंडिंग टास्क असाइनमेंट्स के? नहीं सर, क्यों? थोड़ा टाइम नहीं मिला था। आप लोग मुझे मंडे भेजने वाले थे। यस सर। आपका वो मेल वो जो आता है, अभिषेक का मेल कल आया हुआ है, कल या लास्ट वीकेंड में कुछ तो अभिषेक का मेल आया हुआ है। तो देखो आपने मंडे से ऑलरेडी एक वीक एक्सटेंड करके लिया, फिर भी यू गाइस डिडंट कंप्लीटेड द थिंग्स।